so much when your career is demanding so much time and stuff from your life. If I am here to sit down and have a little chit chat with you guys, so please don't hesitate to ask anything. कोई भी सवाल stupid नहीं होता, जो ना पूछा जाए वो सवाल stupid होता है. तो जो भी आपकी I'd say confusion हो या कोई भी सवाल हो या कुछ भी समझ ना आ रहा हो, गप लगानी हो, you guys can just open your mic up and ask, and I'd be happy to help. So yeah, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोग को. I'll get straight to the point. So before I go all I want to talk a little bit about myself. Adiba ने बहुत sophisticated introduction दे दिया. I'm not that good. मेरा नाम मोमल एजाज है. मैंने यूटी पेशावर से बैचलर्स किया था 2018 में कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में. उसके बाद आई अप्लाइड फॉर अ बंच ऑफ स्कॉलरशिप्स जिनसे मेरी रिजेक्ट हो गई, और फाइनली आई अप्लाइड फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूएस की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए, एंड आई क्वालिफाइड एंड आई वेंट टू यूएस में 5 महीने पहले वापस आई हूँ यूएस से. आई डिड माई मास्टर्स इन कंप्यूटर विजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा जो ऑरलैंडो में है, बहुत जहाँ पे डिज्नीलैंड और सारी मजे मजे की जगह हैं. So that's me on my graduation day in Orlando. उसके बाद I came back to Pakistan and I was completely clueless कि अब क्या करना है क्या नहीं करना. I had a startup that was going on in parallel. मैंने उस पर काफी काम किया था, but that didn't went too far. So I needed a job to actually even keep my startup floating too. So I started, um, um, you know, applying for a whole bunch of companies through LinkedIn and sending out resumes and preparing for interviews and getting rejected over and over again. It was like a excruciating journey of like 5-6 mahine, after which I got a job offer from Super.ai, which is an artificial intelligence based company based out of Germany. And this is my team right here. That's our CEO, who is a PhD of MIT. But like it's a team of really great folks, really amazing guys, and I'm learning a lot here. इसके अलावा I love traveling. So when I was in US, I went to 2 different states other than Florida जहाँ मैं रहती थी. I went to Washington DC and I went to New York, and this right here are the pictures जो मैंने अपने मोबाइल से ली थी. This is Library of Congress. ये World Trade Center है जिसके सामने मेरा होटल था. Feels surreal. ये पेंटागन के ऊपर से जब मेरा जहाज आया. So like I just want to share all these little I'd say memories or snapshots of my life with you guys to motivate you कि अगर मेरी life का कोई भी aspect या मेरी journey का कोई भी aspect किसी को भी inspire कर जाता है, तो I'm more than happy to help in that area because it's really rewarding. It's really hard work. It's hard work at the end, the number of hours you're putting in, but it really pays off a lot. It pays off in a lot of ways. इसके अलावा मुझे सितार बजाने का शौक है. So I've been learning to play sitar for like 2-3 months now. Here in Islamabad, I live in Islamabad, so this is me trying to play something in my living room right here, जहाँ से I'm talking to you guys. And yeah, this is not my sitar, mine is back there. But yeah, that's about me. And let's talk AI. So I guess you guys already have an introductory session with Jawad. It's so hard to stare at screen and talk. I don't know. मुझे live लोगों से बात करने के ज़्यादा मज़ा आता है. But I guess you guys already had a session with Jawad, जिसमें he told you, I'm sorry for this. This is not DefS, sorry. But you guys already know what AI is, or like, does anyone here have any idea what AI is, या किसी को कुछ भी पता हो AI के बारे में, या कोई rough clue भी हो, तो they can like open their mic and speak up, because I don't want to be the only one जो बोल रहा हो. Anyone? AI क्या है? If anyone is hearing. I think AI is when we try to code machines to mimic the human thinking. Sweet. Abdul Wahab ने बहुत अच्छी explanation दी है. That's like the simplest explanation जिसने मुझे help की थी AI समझने में जब मैंने शुरू में सीखना शुरू की थी. अब्दुल वहाब के अलावा कौन बताएगा AI क्या है?
एनीवन, कुछ भी गलत जवाब दे दें, इट डजंट हैव टू बी द राइट आंसर। एआई दरअसल हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसके ज़रिए से लाइक एक रोबोट हो गया या एक मशीन हो गई, एक कंप्यूटर हो गया, जिसको हम कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन दें जिसकी बेस पे वो खुद डिसीजन ले सके और उस काम को अच्छी तरीके से कर सके। माज माज आप किस सेमेस्टर में? मैं तो अभी 4th सेमेस्टर में। आप सीएस कर रहे हैं ना, आपका मेजर सीएस है? जी मेरा कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है और 4th सेमेस्टर है, और इसके अलावा मैं ऐप डेवलपर भी हूँ, फिलहाल यही काम कर रहा हूँ। Ah, sweet, sweet. That was also a very good explanation of AI. So basically to its core, अब्दुल वहाब और महाज दोनों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। AI कुछ भी नहीं होती, हम सारी फैंसी डेफिनेशंस की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपली पूछना चाहें कि AI क्या है, तो अगर मैं अस्यूम करती हूँ कि मेरी ऑडियंस में सबको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, तो AI जो है, अगर आप आसान लफ्जों में बताना चाहें, तो वो बेसिकली it's it's something that you cannot write a program to make your computer do. फॉर एग्जाम्पल, बहुत नाइव सी एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक तस्वीर है ऑफ अ कैट, राइट, तो अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस पिक्चर को उस प्रोग्राम में रीड करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो पिक्चर कुछ भी नहीं होती, बेसिकली इट्स जस्ट अ मैट्रिक्स, इट्स 2D अरे ऑफ जीरोस, वंस, 2, 3 डिफरेंट कलर इंटेंसिटीज के नंबर्स, जो नंबर्स से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, तो बेसिकली एक नंबर का मैट्रिक्स होता है। और आप ऐसा कोई भी पाइथन का या फिर सी का या जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, उसमें आप ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते इफ एल्स या फॉर लूप्स लगा के, जिससे आप सिंपली ये आउटपुट में बता सकें कि इस इमेज में कैट है या डॉग है, बिकॉज देर आर सो मैनी डिफरेंट इमेजेस और सो मैनी डिफरेंट सिनेरियोज जिसमें आप एक बिल्ली की तस्वीर जो है वो खींच सकते हो, राइट। तो यहाँ इसको कहते हैं लाइक ये ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड लर्निंग है, लाइक यहाँ पे पैटर्न्स आ जाते हैं। वी ट्राई टू लर्न पैटर्न्स, वी ट्राई टू से अच्छा अगर इमेज में आईज जो है वो इस कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल से रिप्रेजेंट होती हैं, फर और 2 ears इससे रिप्रेजेंट होते हैं, तो अगर किसी इमेज में 4 टांगे, 2 आईज, फर और एक स्लिम सी बॉडी वाला कोई क्रीचर है, सो दैट मोस्ट सर्टेनली हैव टू बी अ कैट। लेकिन अगर हम बैठे रहे 8-10 साल भी, तो हम किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं लिख सकते जो हमें ये बता दे कि कौन से नंबर्स किस पैटर्न में आए तो वो हमारे पास एक बिल्ली होती है या फिर एक आंख होती है। इनफैक्ट हम वो भी नहीं कर सकते, तो इसको कहा जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन। लाइक आप क्या करते हो बेसिकली, एआई जो है, someone's mic is on, I'm sorry. So basically AI जो है वो अलाउ करती है आपको, जैसे माज ने बताया, जैसे अब्दुल वहाब ने भी बताया, कि वो अलाउ करती है आपको आप ऐसे प्रोग्राम्स लिख सकें जिस 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 जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कुछ लर्न करना सिखा सकते हैं। वो कोई ऐसा टास्क कर सकता है जो आपकी नेटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं कर सकती हैं। आप उसके लिए प्रोग्राम लिख के, इफ एल्स का कोड लिख के उस मसले को हल नहीं कर सकते, आपको उसको ह्यूरिस्टिक से, पैटर्न से लर्न करना पड़ता है, ठीक है। So that's what AI on its high level या very high core is, on a very I'd say abstract level is कि when you try to learn patterns in the data, अब वो अंडरलाइन टेक्निक कुछ भी हो सकती है, आप डेटा साइंस लगा रहे हैं या फिर आप बड़े बड़े मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल्स लगा रहे हैं, या फिर आप सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग कर रहे हैं, मतलब आप सिंपल से सिंपल या मुश्किल से मुश्किल काम कर रहे होंगे, अंडरलाइन आप क्या कर रहे हैं से फर्क नहीं पड़ता, बट एआई इन इट्स कोर इज पैटर्न रिकॉग्निशन, चाहे वो टेक्स्ट में है या चाहे वो इमेजेस में है, बट इन इट्स कोर एआई जो है वो बेसिकली क्या होती है, पैटर्न रिकॉग्निशन होती है, जिसको आप सिंपल एज इन कोड्स लिख के नहीं, सिंपल पाइथन या फिर किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिख के नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अगर हम ज्यादा बेहतर डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो एआई की बहुत अच्छी डेफिनेशंस भी हैं। मिसाल के तौर पे एआई एक टूल है फॉर ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क्स, तो ऐसे इंसान का जो ब्रेन है दैट इज एक्चुअली डिजाइन टू बी मोर क्रिएटिव। तो मिसाल के तौर पे ड्राइविंग है, तो अब गाड़ी चलाना एक ऐसा रिपीटेटिव काम है जो इंसान सीख लेता है एक बार, तो बस उसके बाद बार बार जो है वो डेड माइंड के साथ कर रहा होता है, तो वो क्रिएटिविटी उसमें कुछ नहीं आ रही। इस तरह के और बहुत से टास्क हैं, जैसे कि I don't know what else is AI used for.
बट देयर आर लाइक अ होल बंच ऑफ टास्क जो बहुत रिपीटेटिव होते हैं और जिनमें कोई क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट जो है नहीं होता, और वो हम एआई से करवा सकते हैं। जैसे किसी इमेज को देख के बताना कि इसमें कितने टमाटर हैं या फिर कितने वो हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास यूएस में जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं वो इस काम के लिए एआई यूज करते हैं कि जैसे टारगेट है या फिर इस तरह के बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे सुपर स्टोर्स होते हैं, वहां भी इस तरह के होते हैं। और उनके पास जब इन्वेंट्री में सामान आ रहा होता है ना सारा, तो उन्होंने ऊपर कैमरास लगाए होते हैं और वो कैमरास जो है उस इन्वेंट्री के अंदर जो सामान जितनी भी बकेट से सब कुछ होता है उसकी ऊपर से तस्वीरें ले रहा होता है। तो अब वो वहां पे किसी बंदे को नहीं खड़ा कर सकते कि गिनो के इस डब्बे में कितने टमाटर आए हैं या फिर इसमें कितनी मेडिसिन आई हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो किसी इंसान को नहीं खड़ा कर सकते, बिकॉज इट्स रिपीटेटिव टास्क और इंसान उस स्पीड पे काउंट नहीं कर सकता। और एट द एंड उनको ये काउंट चाहिए होता है ताकि उनको पता हो उनके स्टोर्स में कितना सामान कितनी क्वांटिटी में पड़ा है, ताकि वो अपनी डेटाबेस में फीड कर सकें और आप आराम से चेकआउट करके निकल सकें या स्टफ लाइक दैट। तो उस तरह के टास्क, अब ये रिपीटेटिव टास्क हैं और इनको ऑटोमेट किया जा सकता है, तो इस तरह की चीजों में एआई इस्तेमाल हो सकती है। ये एक चीज है। इसके अलावा एआई आपको बेटर डिसीजंस करने में भी हेल्प करती है। मिसाल के तौर पे हम लोग जो है नेटफ्लिक्स पे या फिर यूट्यूब की वीडियोस पे या फिर आपकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया की आप ऐप यूज कर रहे हैं, उस पर आपकी जो फीड पे सारी पोस्ट आ रही होती हैं, वो आपके पास एआई का एल्गोरिथम चल रहा होता है पीछे, जो कि डिसाइड कर रहा होता है कि बेस्ड ऑन यूर कस्टम यूजर एक्टिविटी, आपके पर्सनल टेस्ट की बेस पे किस तरह की पोस्ट आप देखना पसंद करते हैं। वो बेटर डिसीजन टेकिंग एल्गोरिथम होता है जो पोस्ट सिलेक्ट करके आपकी फीड में फिल कर रहा होता है। इस तरीके से आप अमेजोन या किसी भी परचेजिंग साइट पे जाते हैं, तो आप अगर एक प्रोडक्ट खरीदते हैं या एक प्रोडक्ट को कार्ट में डालते हैं तो उसके रेलेवेंट प्रोडक्ट्स नीचे पॉप अप होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज लाइक मेकिंग बेटर डिसीजन, मेकिंग गुड रिकमेंडेशंस, suggesting good recommendations or making better decisions. That is another aspect जहाँ AI यूज होती है। इसके अलावा AI जनरेट भी करती है बहुत कुछ। तो चैट जीपीटी का हम सब ने सुना है। AI जो है तो वो जनरेटिव आर्ट में आता है। द पॉइंट इज कि चैट जीपीटी जो एक जनरेटिव एआई है, ऐसी एआई जो नई चीजें बनाती है। तो हमने जनरेटिव एआई में, मुझे नहीं पता आप लोगों ने गैन्स या इन चीजों को सुना है कि नहीं, लेकिन इस तरह की एआई है जो न्यू फेसेस बनाती है, न्यू पेंटिंग्स बनाती है। इस तरीके से चैट जीपीटी या फिर गूगल का ब्रैड या फिर जितने भी सुपर लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो जनरेटिव एआई में आते हैं, क्योंकि वो न्यू टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो वेब पे या कहीं पढ़ी या किसी इंसान ने कहीं लिखी नहीं हुई। इससे चैट जीपीटी से आप जब भी कोई बात पूछते हो तो आपको हर दफा नया जवाब दे रहा होता है, क्योंकि वो जनरेटिव एआई है, वो नई चीजें जनरेट कर रहा है। सो और इस तरह लाइक द कन्वर्सेशन कैन गो ऑन, बट ऑन द हाई लेवल इन सबके कोर पे पैटर्न रिकॉग्निशन हो रही होती है, जिसकी वजह से एआई जनरेट कर रहा है या बेटर डिसीजंस कर रहा है या फिर ऑटोमेटिव टास्क को रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर रहा है। इन सब की कोर पे आपके पास जो है पैटर्न रिकॉग्निशन होती है, जिसकी वजह से एआई इज doing what it's capable of doing actually. And I won't bore you too much, but these are some of the things that I've worked on. So like I've built a chatbot for booking cabs. तो मैंने NLP, Natural Language Processing जिसको कहा जाता है, वो AI का सब डोमेन है, वहाँ पे मैंने काम किया है। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आपका इनमें से किसी का इसी डोमेन में कोई प्रोजेक्ट हो या किसी का कोई सवाल हो, किसी को कोई प्रोजेक्ट ऐसे ही अच्छा लग रहा है, वो पूछना चाह रहा है, सो प्लीज डू। सो ये मैंने एक चैट बॉट बनाया था जो कि आपके साथ इंटरेक्ट करके आपकी कैब बुक करता है। दिस वाज आवर स्टार्टअप एक्चुअली। इसके अलावा ये वो मेरा पेपर था जो CVPR में एक्सेप्ट हुआ था, जो मैंने अपने प्रोफेसर के साथ US में जिस पे काम किया था, जिसका मकसद था कि अगर एक कैमरा लगा और एक नर्स कोई एक्टिविटी कर रही है उसके सामने, तो वो हम रिकॉग्नाइज करते थे, और वो इसका भी एक होल पर्पस था। इसके अलावा एक रोड एंड लेन मार्किंग डिटेक्शन सिस्टम हमने बनाया था यूरोप के क्लाइंट के लिए, अपने सीनियर के साथ मिलकर ये मैंने बनाया था। और कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा। और इसका मकसद था कि आपके पास रोड पे जो डिफरेंट लाइंस और लेन्स लगी होती हैं,
तो कौन सी लेन क्या है वो डिटेक्ट करना है। तो ये दोनों कंप्यूटर विजन के थे, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का था। इसके अलावा फेस DTR मैंने बनाया था, फेस डिटेक्शन ट्रैकिंग एंड रिकॉग्निशन सिस्टम। जवाद, दिस इज द वन दैट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट यस्टरडे। आप इस वाली रेपो को जाके गूगल गिटहब, मेरी गिटहब पे देख भी लो। सो दिस जी, I noted it down. I will surely check it out. हाँ, so this was a face detection tracking and recognition system, जिसमें हम फेस को पहले फ्रेम में डिटेक्ट, हमने एक कैमरा लगाया था, एक रास्पबेरी पाई लिया था। मैं थी, मेरे साथ मेरी टीम में एक और लड़का था, हमने यूएस में अपनी क्लास प्रोजेक्ट के तौर पे किया था। तो वी डिटेक्ट द फेस इन द फ्रेम, फिर हम देखते थे कि फिर हम रिकॉग्नाइज करते थे कि ये बंदा है कौन, और उसके बाद हम वो बंदा फ्रेम में मूव करता था तो हम उसके फेस को ट्रैक कर रहे होते थे। सो इट्स कॉल्ड फेस DTR। इसके अलावा ट्यूमर सेगमेंटेशन मैंने की थी एक रिसेंट स्टूडेंट के लिए, or document intelligence is something that I'm working on right now at super.ai. ज़्यादा डिटेल्स इसकी नहीं शेयर कर सकती, it's proprietary, but the point is कि NLP is very strong, मेरा उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है। तो if you have anything in that regard, अगर आप उसमें कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। बट I'd surely suggest कि NLP या कंप्यूटर विजन जो भी साइड आपको स्पार्क करती है उनमें रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स ढूंढ के, अगर कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन और anywhere else, but Kindly wait kare, there might be some issue at her end, so she might be joining shortly. Hi everyone. Can you guys hear me? I don't know. I was disconnected. I'm sorry. I thought I was removed from the meeting, but I guess I'm back. Right? Yes, ma'am. Someone is removing again and again. Someone is removing again and again. That is weird. Diba, Jawad, can you guys look into it? Okay, I'm looking into it. I'm looking into it. You please continue, Mohammed. Okay. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे about some of the AI stuff that I've built। बस इस पे ज्यादा बोर नहीं करती आप लोग को, लेकिन आइडिया देना था कि मैंने NLP में भी कुछ ना कुछ काम किया है और मैंने कंप्यूटर विजन में भी थोड़ा बहुत किया है। तो if you guys have any questions relevant to that, हम फिर वो भी लेते हैं। So let's talk about a bit about AI's potential. So have you or any one of you ever used any AI based service? I need people to, open their mics and shout out. आप लोगों में से आप लोगों में से किसको लगता है कि AI based service? Yeah. Oh, I have hand raises. Yeah, you just open your mic and speak. गूगल असिस्टेंट जो हम यूज करते हैं। स्वीट। वो बड़ी तबाही चीज है, पता, मैं अलार्म नहीं यूज करती, मुझे वो उठाता है सुबह। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सैफुल्ला मैम। सैफुल्ला ने बहुत अच्छा ऑप्शन बताया हमें। A very great utility of AI that we actually use a lot, that is Google Assistant. Anyone else? ChatGPT, ma'am. ChatGPT आपने किस लिए यूज किया GPT? अच्छा, ठीक है। We got ChatGPT which can be used for a whole bunch of stuff. ChatGPT किस लिए यूज कर सकते हैं हम? ChatGPT का कोई बेहतरीन इस्तेमाल बताएगा मुझे? सबसे तबाही इस्तेमाल किसी को लगता हो मैंने ChatGPT से क्या कमाल किया है इस्तेमाल करके उसको?
एनीवन? कंटेंट राइटिंग जो होते हैं आपने प्रॉब्लम हो कंटेंट सकती है लर्निंग के मॉडल्स बनाए। प्रॉब्लम क्या- सॉल्विंग में भी हेल्प करती है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों जैसे। अच्छा, तो नहीं, आ, एक बंदा पहले बोले ना, किसने प्रोग्रामिंग जी के लिए यूज किया? हाँ, मैंने प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया है फ्लटर में। अक्सर हम कुछ विजेट्स बनाते हैं या कुछ और कोडिंग हो गई, तो जब हम चैट जीपीटी को बताते हैं तो यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब वो हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर जब पूरा उतरता है तो फिर दिल से एक किस्म की खुशी मिलती है हमें। और तो इसके आपने अलावा कोड लिखवाया अपना? हाँ, काफ़ी मरतब, बल्कि मैं तो यूज़ करता रहता हूँ। जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ तो साथ में चैट जीपीटी पे वही लिख रहा होता हूँ कि ये करो, ये करो। और तो इसके अलावा मैम ने क्या कुछ लगता है? नहीं, चैट जीपीटी का कोड की क्वालिटी आपको कैसी लगी है? पर्सनली जब मैं देखता हूँ तो वो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं तो फुल उतरता है उस पे, यानी सेटिस्फाइड। Sweet, बिल्कुल, that's really good, that's really great. This is how you guys should explore. तैयबा, I see a females trying to speak. तैयबा, आप बताओ चैट जीपीटी किस लिए यूज किया है? मैम फर्स्टली तो एरर सॉल्विंग के लिए, जहाँ हमें इसके अलावा एरर्स जब हमें आते हैं तो हमें बहुत से सोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे स्टैक ओवरफ्लो, लेकिन उधर हमें एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं मिलता। इधर हम बहुत अच्छे से अपना सोल्यूशन देख सकते हैं और उसके रिलेटेड जितने भी हमें चैट जीपीटी है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन देता है पहले तो, और इसके अलावा बस इसीलिए एरर्स के लिए, एरर फाइंडिंग के लिए। तो अगर चलो लेट्स से मैं गूगल से हूँ, सही है, मैं गूगल में काम करती हूँ और मेरा एक कोलीग है वो ओपन एआई में भी काम करता है, चैट जीपीटी पे वो काम कर रहा है, वो असल में कर भी रहा है। सो आपसे अगर मैं पूछूं तैयबा कि आप मुझे बताओ कि यार आपके पास गूगल भी है और आपके पास चैट जीपीटी भी है, और अब आप कोई प्रोग्राम लिख रही हो, कुछ लिख रही हो और आपके पास एक बग आ गया है, और अभी कोई भी सीनियर डेवलपर या कोई भी आसपास नहीं है जिससे जाके पूछो या आप हेल्प लो या समथिंग, तो आप गूगल प्रेफर करोगी या चैट जीपीटी प्रेफर करोगी, और क्यों करोगी? मैम गूगल को ये नहीं पता कि मेरा पीछे की बैकग्राउंड क्या, मैं किस प्रोग्राम पे काम कर रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे अलग। और चैट जीपीटी को ये पता है कि, और मैं उसको ये भी बता सकती हूँ मेरी हिस्ट्री उसमें सेव हो रही है कि मैं किस फील्ड में काम कर रही हूँ और मैं किस जगह, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई मॉड्यूल बिल्ड कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी, तो उससे पहले जितनी मेरी सर्चेज होंगी वो भी उसके पास सेव होगी, तो वो उसके रिलेटेड ही मुझे आंसर देगा और एग्जैक्ट आंसर देगा। तो मेरे लिए चैट जीपीटी ठीक रहेगा एरर्स के लिए। सो तैयबा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की एवरीवन, कि शी विल प्रेफर चैट जीपीटी बिकॉज दैट कीप्स ट्रैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट? चैट जीपीटी ना, मैंने चैट जीपीटी के पीछे जो मॉडल लगा हुआ है, मैंने उसका आर्किटेक्चर नहीं देखा, ऑफ कोर्स किसी ने भी नहीं देखा हुआ, बट तैयबा ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की, और ये बात जो है मैंने स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर से सुनी थी व्हेन आई वाज इन यूएस, एंड दैट इज, सो चैट जीपीटी जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो एआई का एक सब डोमेन है, वहाँ का एक डीप लर्निंग मॉडल है, ठीक है? एक डीप लर्निंग मॉडल बहुत बड़ा सा तबाही बनाया हुआ है ओपन एआई वालों ने ना, और जनाबे वाला वो क्या कर रहे हैं कि बस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने एक एपीआई बनाई हुई है, एक वेबसाइट पे उसको डाला हुआ है और सब लोगों को दिया हुआ है, वो लोग यूज कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा डीप लर्निंग का मॉडल है, और वो मॉडल जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है। मैं टेक्निकल ज्यादा नहीं होना चाह रही, लेकिन मैं आप लोग बता रही हूँ कि जो चीज तैयबा ने फील किया है, दिस इज एक्चुअली रियली ट्रू। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर एक तरह का मॉडल है जो गूगल ने 2017 में बनाया था, और उसके बाद एनएलपी का पूरा जो डोमेन है वो डिस्टर्ब हो गया था, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मॉडल्स। और ट्रांसफॉर्मर के मॉडल्स की सबसे अच्छी बात क्या थी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी तबाही मचाई थी? दैट वाज दे वर केपेबल ऑफ रिमेंबरिंग द कॉन्टेक्स्ट। आप ट्रांसफॉर्मर के मॉडल्स को लंबे 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 सेंटेंसेस दो, तो वो आप सेंटेंस के शुरू में क्या कह रहे हो या आपने क्या कॉन्टेक्स्ट दिया था वो उसको याद रख सकता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ ये हमें भी थोड़ा सा हिंट देता है कि चैट जीपीटी भी डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल ही है, जो कि जनाबे वाला इस ट्रांसफॉर्मर के मॉडल्स को इन्होंने कोई बहुत फाइन ट्यून करके या कुछ करके कोई तबाही चीज बनाई हुई है, वी डोंट नो, और ये उसको यूज कर रहे हैं, और ये आपका कॉन्टेक्स्ट याद रख सकता है, और उस ही कॉन्टेक्स्ट से रेलेवेंट आंसर जनरेट कर रहा होता है, इसलिए वो आपको कस्टम फील होते हैं। So that is actually really good, and
I don't know if you guys have heard about Google's Brad as well, लेकिन Google of course is not sleeping. वो देख रहा है कि ChatGPT आहिस्ता आहिस्ता जो है Google सर्च को और Google सर्च इंजन को रिप्लेस कर रहा है, तो उन्होंने अपना एक generative conversational AI bot बनाया है which is called Brad. वो अभी तक ओपन पब्लिक में नहीं आया, बट आई हैव सीन ब्रैड का काम एंड ब्रैड इज रियली गुड एज कंपेयर टू ChatGPT. मैं ChatGPT की बुराइयां नहीं करूंगी, लेकिन मैंने भी ChatGPT को कोड लिखवाने के लिए यूज किया है. ना फॉर अ जूनियर डेवलपर ChatGPT अच्छा होता है, लेकिन मुझे ChatGPT का लिखा हुआ कोड बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि आपको पता है ChatGPT जो है झूठ बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है. ये AI का मसला है. तो वो आपको अक्सर गलत कोड जनरेट करके देता है, या फिर वो आपको ऐसा कोड गलत कोड से मुराद मेरी ये है कि फॉर एग्जांपल वो जिस लाइब्रेरी का जो फंक्शन आपको बता रहा होगा वो लाइब्रेरी शायद आउटडेटेड होगी, या फिर वो उस काम को करने का मोस्ट एफिशिएंट तरीका नहीं होगा. आप ChatGPT को बोलो कि मुझे ये ना बोलो, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल आप ChatGPT को बोलो कि मुझे 1 से 20 तक प्रिंट करके दो, तो वो उसको फॉर लूप से प्रिंट करेगा और समथिंग लाइक दैट, जबकि उसको पाइथन में या किसी और तरीके से बड़ा टाइम एफिशिएंटली प्रिंट करने का तरीका होगा. तो उसका कोड हमेशा एफिशिएंट नहीं होता, उसका कोड हमेशा बेहतरीन या अप टू डेट नहीं होता. तो हमेशा क्रॉस चेक किया करें ChatGPT के जनरेट किए हुए कंटेंट को, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें. और गूगल का जो ब्रेड है, इफ दे ओपन सोर्स इट, आई कैन डैम श्योर यू गाइस कि वो ChatGPT से बहुत ऊपर की चीज होगी. तीसरा ये मैं बताना चाह रही हूँ, कुछ बच्चों ने कहा है कि वो ChatGPT को कोडिंग के लिए यूज करते हैं. सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड GitHub Copilot, जो मेरे कलीग ने मुझे रिकमेंड किया है, जो ChatGPT पे काम कर रहे हैं. असल में उसको बनाने वाली टीम में है, वो OpenAI में होते हैं और वो उस पे काम कर रहे हैं. सो ChatGPT को आप कोडिंग के लिए ना यूज करो तो बेहतर है, जबकि बल्कि एक और चीज होती है, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हो या कोई भी एडिटर यूज करते हो ना, तो उसमें एक एक्सटेंशन है जिसको कहते हैं GitHub Copilot. आप लोग वो डाल लो, वो असल में बैकएंड पे ChatGPT को कॉल कर रही होती है, और वो ChatGPT की स्पेसिफिकली वो वर्जन यूज कर रहा होता है which is I am not sure but which is customized for coding. तो वो अलॉट बेटर है. तो आप लोग वहां से कोड उठा के यहाँ पेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट अपने एडिटर में जो है ChatGPT का कोड जो है वो यूज कर सकते हो. एंड या कोई कोई कुछ बोलना चाह रहा है, माज कुछ कहना चाह रहे हैं. जी माज. जी मैम, एक क्वेश्चन था मेरा कि जितना AI में हम ज्यादा कुछ कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये लग रहा है कि इंसानों का जो काम है वो थोड़ा कम पड़ रहा है. हालांकि ये फील हो रहा है रियल में. नहीं 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 नहीं, ये जब ChatGPT आया था ये मुझे भी लगा था, लेकिन सी और मैंने मतलब एज अ मशीन लर्निंग रिसर्चर 1-2 साल काम किया है, और MLOps विच इज मशीन लर्निंग इन प्रोडक्शन, उस पर मैंने अभी कुछ आधा साल हुआ होगा काम शुरू किया. और मुझे भी यही लगता था कि बस अब मुझे कुछ लर्न करने की, कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है. तो इस बारे में मैं बात करती हूँ. हम सिर्फ इस तरह गपशप नहीं लगाएंगे. आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स तीसरे चौथे पांचवें सेमेस्टर में, तो मैंने कुछ कंटेंट रेडी किया आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे बंदा बड़ा क्लूलेस होता है कि मैं क्या करूं, क्या सीखूं, किस तरह करूं. तो मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि जब मैं आप लोगों की जगह पे थी तो मैंने क्या क्या ट्राई किया था टू फाइंड अ वे कि कुछ करूं, टू बी सक्सेसफुल, टू डू समथिंग. तो उस पर बात करेंगे डेफिनेटली. बट ये जो आपका सवाल था, ये मैं जल्दी से जवाब दे देती हूँ. नो, इट्स नॉट लाइक कि AI ह्यूमंस को रिप्लेस कर लेगी. AI इस वक्त असिस्टिव डोमेन में चल रही है. देखें, आप ChatGPT से सही सवाल अगर नहीं पूछेंगे, ठीक है, आप ChatGPT को ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे उबर का कोड लिख दो या मुझे करीम टाइप सर्विस का कोड लिख दो, और वो आपको दे दे कि वो आप बना रहे हैं, चलो जी काम खत्म आपका. करीम या उबर अपने सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दे, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या किसी भी मॉनिटरिंग इंजीनियर या टेस्ट इंजीनियर या सपोर्ट इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है. ChatGPT है, उससे करवाओ. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. AI, जनरेटिव AI या ये जो भी डिफरेंट कन्वर्सेशनल बॉट्स हैं, वो इस वक्त इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस करें. मैंने ChatGPT से कोड लिखवाया, बहुत दफा लिखवाया, उसके कोड में काफी गलतियां होती हैं. वो इस तरह का कोड लिखता है कि वो एक जूनियर डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है, एक जूनियर डेवलपर की जॉब रिप्लेस हो सकती है. लेकिन ChatGPT को इस्तेमाल करने के लिए भी तो आपको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजीज का. आपको पता होना चाहिए डॉकर क्या है, कुबरनेटिस क्या है. अगर आप उससे डेवऑप्स का या MLOps का कोड लिखवा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉकर क्या चीज होती है, या कंटेनर क्या चीज होता है, या इमेज क्या चीज होती है. या इन बातों को छोड़कर आपको पता होना चाहिए न्यूरल नेटवर्क क्या चीज होती है, वेट्स क्या होते हैं, लॉस फंक्शन क्या होता है. या आपको पता होना चाहिए डेटा इम्बैलेंस क्या होता है, क्लास इम्बैलेंस क्या होता है, ताकि आप उससे बात कर सको, उसके सवालों के जवाब को समझ सको और उसके फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर दे सको.
तो AI इस वक्त एक असिस्टिव टूल है, रिप्लेसमेंट टूल नहीं है। ठीक है, आप ChatGPT को बोलो मुझे वेबसाइट बना के दे दो, और वो आप आगे उठा के किसी और को दे दो, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो बंदा कहेगा इसमें चेंजेस करो, कस्टमाइजेशन करो। सो यू हैव टू नो दीज टूल्स। आप जो भी सीख रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, AI जो भी सीख रहे हैं, you have to continue learning it, because AI is not completely independent at this point कि आप उस पर completely rely कर लो और सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ. It doesn't work like that at all. तो replacement अभी बड़ी दूर की बात है, उस वाले पॉइंट से परेशान होने की जरूरत नहीं है. और मैं मजीद सवाल लूंगी लेकिन टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़रूरी है, सब बच्चे सुन लें. तो फिर ये AI वाली गप हम आखिर में लगाते हैं, सही है. तो ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि ये सर्विसेज बैकएंड पे AI यूज़ कर रही होती हैं, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, a bunch of recommendation systems. And so this was the part, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो मैं नहीं चाहती ये रह जाए कि हाउ यू गाइस कैन गेट स्टार्टेड. तो मुझे नहीं पता इस वक्त आप में से कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं. कुछ स्टार्टअप्स में काम कर रहे होंगे, कुछ तीसरे चौथे सेमेस्टर में या 5वें या 6ठे में होंगे, या फाइनल ईयर में होंगे, सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं, या फिर स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, या इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे. तो कुछ तो करें. बट या आई कैन काइंड ऑफ शेयर माय जर्नी कि अगर आप लोग इस वक्त बिल्कुल क्लूलेस हैं, या रफ आइडिया है कि कुछ करना है, या AI में स्टार्ट करना है, या यू वांट टू डू समथिंग, तो हाउ यू कैन डू इट. इन some suggestions that I have for you guys at this point. So the way I want to answer this is in this way कि अगर इस वक्त मैं आपकी जगह होती, अगर मैं अभी से 3-4 साल पीछे चली जाती हूँ 2018 में, जब मैं अभी भी ग्रेजुएट हुई थी, तो इफ आई वर टू स्टार्ट ओवर, अगर मैं अपनी जर्नी एज इट इज नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की हैं और उनसे सीखा है. तो मैं अगर दोबारा शुरू करती, अगर मैं आप में से किसी एक की जगह पे होती, 3, 4 या फिर 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट होती, या फाइनल ईयर की स्टूडेंट होती, AI की ज़्यादा नॉलेज ना होती मेरे पास, कोई ख़ास प्रोजेक्ट ना होता मेरी प्रोफाइल पे, कोई ख़ास आइडिया या क्लू ना होता मुझे, ना कोई ख़ास स्किल होती, बस थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है और AI बज़वर्ड है, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो मैं वहाँ से अपनी जर्नी कैसे लेके जाती. दैट्स समथिंग आई वुड हैव डन अगर मैं आपकी जगह पे होती. तो जो फर्स्ट थिंग मैं करती, दैट वुड हैव बीन, अब ये AI का लफ्ज मैं सुन रही हूँ और मैं देख रही हूँ अपेरेंटली जो लोग बहुत सारे नोट्स छाप रहे हैं वो AI बहुत कर रहे हैं. सो इट सीम्स लाइक कि ये ऐसा करियर है जिसमें काम शुरू किया जा सकता है, बज़वर्ड है. तो मैं AI के बारे में सीखना शुरू करती, इसकी सब फील्ड्स के बारे में जानती कि हाँ भाई ये कंप्यूटर विजन क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, ये जनरेटिव AI क्या होती है. लाइक जस्ट गेट टू नो. मैंने उनमें मास्टर्स करके रिसर्च पेपर नहीं छापने, लेकिन मुझे पता हो कि ये चीजें क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, और मशीन लर्निंग और AI में फर्क क्या है. लाइक इस तरह के क्वेश्चंस, यू नो, ब्लॉग्स पढ़ती, ऑनलाइन कोर्सेज उठाना शुरू कर देती, कोर्सेरा पे जाके एंड्रयू यांग की इंट्रोडक्शन टू, और मैंने इस पे खुद ही इन चीज़ों के नाम स्लाइडों पे नहीं लिखे, बिकॉज जो लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं, एज आई एम स्पीकिंग, आप कागज कलम लेके बैठे और अपने पास ही बातें लिखते जाएं, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो you can just swipe it out. But yeah, ऑनलाइन कोर्सेज में करती, कोर्सेरा पे जाके, जिसमें मैं एंड्रयू एनजी की इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन करती. मैं डीप लर्निंग टेक्स्ट बुक के नाम से एक ओपन सोर्स बुक है जो कि यान लकून, जो कि गॉड फादर ऑफ AI है, उसने डीप लर्निंग पे किताब लिखी हुई है, उसको पढ़ना शुरू करती. मशीन लर्निंग और AI में डिफरेंस क्या है ये समझना शुरू करती. यूडेमी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. यूडेमी पे जाके मशीन लर्निंग या इंट्रो टू मशीन लर्निंग का कोई कोर्स उठाती. यूडेमी में अभी भी खुद भी कोर्सेज के लिए यूज करती हूँ, कुछ भी मुझे सीखना होता है तो. यूडेसिटी पे जाके कोई नैनो डिग्री उठा लेती मशीन लर्निंग की या AI की, जस्ट टू ब्रेक दैट फर्स्ट बैरियर, कि मुझे पता चले, कोई मुझसे कहे AI क्या है तो मुझे कुछ पता हो कि हाँ भी थोड़ी बहुत मुझे आती है, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है या थोड़ी बहुत बेसिक्स हैं. तो ये जब इनिशियल मैंने 1 या 2 कोर्सेज कर लिए थे या कुछ मुझे आइडिया हो गया था, उसके बाद मैं खरीदती बुक्स, बिकॉज बुक्स इज समथिंग जो खरीदने का या पढ़ने का ट्रेंड हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में नहीं होता, लेकिन US के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा होता है. तो कोई भी एक भी बुक खरीदती अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू AI, लाइक इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग फॉर डमीज, वो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है.
जी, Okay. someone have a good book suggestion? Okay, I guess we're good. ठीक है, तो आई वुड ट्राई टू कलेक्ट एज मच कंटेंट एज आई कैन। मैं आपको नहीं कह रही कि एआई की किताबों का पहाड़ बनाना, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट डालें अपने एंड से, राइट? तो मैं एआई की 1 या 2 बुक्स खरीदती, मशीन लर्निंग या एनएलपी या कंप्यूटर विजन के हवाले से ऑनलाइन पीडीएफ्स खरीदती, बहुत तबाही अच्छी किताबें मौजूद हैं, उनको पढ़ के उनको समझना शुरू करती, रोजाना आधा घंटा 15 मिनट, लेकिन डिसिप्लिन से करती ताकि मेरी आदत बन जाती है, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ साथ कि हाँ दिस इज समथिंग आई एम लर्निंग, दिस इज समथिंग आई कैन टॉक अबाउट, और लॉन्ग रन में मैं इसको अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ, राइट? उसके बाद आफ्टर थ्योरी कुछ मुझे बेसिक्स मिल जाती हैं, तो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। अब मैंने अपने करियर में कैगल पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और मुझे उसका अफसोस है, लेकिन अगर मैं दोबारा शुरू करती तो कैगल एक प्लेटफॉर्म है डेटा साइंटिस्ट के लिए, जिस पे आप जाके, जिस पे डेटा सेट्स पड़े होते हैं, आपको बेसिक्स मशीन लर्निंग की एआई की आ जाती है, तो आप वहाँ जाके कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ जाके पाइथन की नोटबुक्स बनाते हैं, और आप जो है डेटा सेट्स का एनालिसिस करते हैं, मॉडल्स ट्रेन करते हैं, और फिर डिफरेंट लोगों ने अपने मॉडल्स ट्रेन किए होते हैं उस डेटा सेट पे, आप उनके साथ अपने एक्यूरेसी स्कोर्स कंपेयर करते हैं, पूरा लीडर बोर्ड होता है। अगर आपका मॉडल सबसे अच्छा है, आपको हजारों डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, आप पैसे भी कमा सकते हैं, और अगर नहीं होता अच्छा तो आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, हर प्रोजेक्ट से आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। सो कैगल इज लाइक द बेस्ट प्लेस टू गेट स्टार्टेड अगर आप एआई में शुरू कर रहे हैं, एआई के प्रोजेक्ट्स करने के हवाले से। अगर कैगल पे मेरा रुख नहीं बनता तो मैं ऑन कैंपस ढूंढती कि कौन लोग हैं जो तबाही हैं, जैसे आपकी टीम में जवाद हैं, या फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं जिनके साथ आप रीच आउट कर सकते हैं, जो अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, माज है, तैयबा है, अब्दुल वहाब, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे सवाल पूछे हैं, तो आप इनके नाम देखें, इनकी ईमेल आईडीज देखें, कैंपस पे ढूंढें इनको, पेशावर में रहते हैं, इनको जाके ढूंढें, इनके साथ कोलैबोरेट करें। हाँ भाई तुम एआई पे कुछ बना रहे हो, कुछ मजे का बना रहे हो, आओ एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मिलके किसी चीज पे काम करते हैं, तुम्हें कुछ आता होगा, कुछ मुझे आता होगा, मिलके कुछ बनाते हैं, राइट? सो इसको कहते हैं ऑन कैंपस कोलैबोरेशन। आप नॉलेज एक्सचेंज करते हो, आप इस तरीके से सीखते हो। मेरे टीचर्स में कोई एआई बहुत ज्यादा कर रहा होता है या कोई बहुत तबाही है, तो मैं उसके पास जाके मैम किसी या सर किसी एआई के प्रोजेक्ट पे काम करना है मुझे, मैं पैसिवली करूंगा, क्लासेस के बाद आ जाऊंगा, एक्स्ट्रा समोसे नहीं खाऊंगा, लेकिन आके आपके पास बैठ जाऊंगा और प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। या फिर कोई सीनियर आपका जिसने अच्छा स्टार्टअप बनाया हो, या फिर जिसने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हो, या जिसने कोई अच्छा पेपर पब्लिश किया हो, आप उसके पास जाओ, उससे गाइडेंस लो कि मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई अच्छा आइडिया दें, या फिर अगर आपके पास है तो चलो मैं हेल्प करता हूँ, कोलैबोरेट करता है, यू नो। द आइडिया इज टू फाइंड प्रोजेक्ट्स, टू वर्क ऑन देम। सिर्फ थ्योरी नहीं सीखनी, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करो, और आप उन प्रोजेक्ट्स से लर्न करना शुरू करो, क्योंकि लर्न बाय डूइंग इज द बेस्ट थिंग जो मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाई है। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने से आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रहा होता है, ओ किताब खत्म हो गई, ओ कोर्स पूरा हो गया, लेकिन जब तक आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू नहीं करते आपको पता नहीं चलता कि शेर की कितनी पकती है because it's really different, and this is what it all comes down to। आपका फोकस एआई सीखने पे, कोर्सेज करने पे, इन सब लोगों को ढूंढ के इनको रीच आउट करने में किस चीज पे होना चाहिए कि आपने गुड प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो मैं स्टेप बताने लगी हूँ उसके लिए ये बहुत जरूरी है, राइट? तो आपके पास आपकी प्रोफाइल पे, आपकी रेज्यूमे पे अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और एक अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है? जो कि गिटहब पे मौजूद हो, ठीक है, और जिसका कोई यूजर एंड पॉइंट या कोई यूजर स्टैट मौजूद हो। इलॉन मस्क ने ये कहा था कि आप कोई बहुत छोटी सी चीज बनाओ, लेकिन वो कोई यूटिलिटी, जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट या एडोब फोटोशॉप कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप उसमें बहुत छोटा सा, लाइक उसकी ब्रश का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया जो यूजर को ब्रश लोकेट करने में आसानी करता है, और समथिंग लाइक दैट। सो द पॉइंट इज कि यू शुड बिल्ड सम प्रोजेक्ट्स जो गिटहब पे मौजूद हों, और जिनकी यूटिलिटी, जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई एंड गोल, जिसका कोई यूज हो, राइट? इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपकी प्रोफाइल पे होने चाहिए, ये बहुत जरूरी होते हैं अच्छी स्कॉलरशिप्स, एक अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट करने में, या फिर अच्छी अच्छी जॉब्स लैंड करने में। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके रिसर्च पेपर्स, आपकी जीपीए, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, मेरी जीपीए ने मुझे हेल्प किया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं किया, किसी मतलब स्कॉलरशिप के अलावा से मुझे किसी और पॉइंट पे हेल्प नहीं किया, बट दीज गुड प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स इज व्हाट हैज एक्चुअली led my way to where I am right now. So trust me, this is very important.
इसके अलावा फिर इस पॉइंट के बाद आपके पास आपने एआई सीख ली है, आपने एआई प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया, आपकी प्रोफाइल पे 2-3 अच्छे गुड एआई के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, एक कंप्यूटर विजन में, एक एनएलपी में, आपने कुछ बना लिया है, उसका गिटहब पे कोड डाल दिया है, एक वेबसाइट या कुछ बना के उसकी एनडीपीआई डाल दिया है, नाउ यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो इससे आगे फिर आपके पास 3 रास्ते हो सकते हैं, या तो आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करो, यूएस यूके चले जाओ, बाहर के प्रोफेसर्स के साथ जाके आप रिसर्च करो और अपनी इस रिसर्च वाली जर्नी को मजीद बढ़ाओ, मजीद चीजें सीखो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, या फिर आप अपना ओन एआई स्टार्टअप बनाओ। तो मैंने ये तीनों काम किए हैं मैं तीनों पे आपको थोड़ा थोड़ा हाई लेवल आइडिया देती हूँ। तो फॉरेन स्कॉलरशिप्स में आई अप्लाइड फॉर फुलब्राइट, कॉमनवेल्थ, शिवनिंग, हाँ, और मैं बाकी सबसे रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन आई गॉट क्वालिफाइड फॉर फुलब्राइट स्कॉलरशिप। तो एट द एंड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं अबाउट फुलब्राइट स्कॉलरशिप तो मैं वो ले सकती हूँ, और आपकी ये प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स और ये जो सारी जर्नी मैंने बताई है, ये आपको फॉरेन स्कॉलरशिप्स लेने में कैसे हेल्प करेगी और इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम उस पर बात कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाके पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो और आपने पैसे कमाने हैं, तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो बाहर की कंपनीज के लिए। एंड मैन दैट इज मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, जूम, और इसमें बहुत सारी और भी कंपनीज आ जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट इन कंपनीज के लिए अप्लाई करना शुरू करो, बस बीएस कर लिए, मास्टर वास्टर या बाहर जाके मजीद नहीं पढ़ा जा रहा, तो जो लोग ये रास्ता लेना चाहते हैं उनको मैं यहाँ पे 2 बुक्स रिकमेंड करूंगी। क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बाय गेल लाखमान, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और दूसरी किताब है एस द डेटा साइंस इंटरव्यू बाय निक सिंह। आप ये 2 किताबें खरीदो या इनको ऑनलाइन देखो और इनको पढ़ना शुरू कर दो। जॉब्स आपने इन अच्छी कंपनीज में कैसे लैंड करनी है वो आपको ये बता देंगे। आप आराम से महीने के 10, 12, 13, 15 लाख कमा लोगे, which is a lot more than you need, and you will have a really good earning as well as a very good source of learning. तो आप वो वाला ट्रैक कैसे ले सकते हो, वो आपको यूरोज में या पाउंड्स में या डॉलर्स में आप कैसे अर्न कर सकते हो, which I am doing, और मैंने ये कैसे किया है, by learning these 2 books, just literally just following these 2 books. तो this is how you can do this. और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, you want to go for your own startup, तो दैट इज लाइक वेरी टाइम टेकिंग। दिस इज समथिंग जिसके साथ मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा अभी सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं है कोई भी, बट with the startup I learned that you don't have your own life. I had to stay up like till 4, 5 or 6 in the morning. We worked like crazy day and night. There was startup के लिए, जब startup वाला पाथ आप लेते हो तो आप यूफोरिया में रहते हो कि yes it's gonna work, yes it's gonna work, yes it's gonna work. आपको टाइम, एनर्जी, पैसे सब कुछ इन्वेस्ट करना होता है। I worked on my startup for 2 years and right now it's on hold, क्योंकि we are collecting money to actually keep it floating. But the point is ke if you want to take this part, I'm not the right person to guide you a lot, क्योंकि I'm not the one जिसने अपना 100% इस बात को दिया। But if you are down for this part, मैंने 1-2 काम किया इस डायमेंशन में भी, तो मैं आपको स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज जो हैं वो दे सकती हूँ। एंड यस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। दिस इज माय लिंक्डइन। अगर आपके कोई सवाल हो, आप रीच आउट करना चाहें तो मुझे यहाँ पे कर सकते हैं, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि ये सारी बातें मैं आप सबको बताऊं जरूर। सो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। तो अगर किसी का कोई सवाल है या हमारे पास टाइम है, आई डोंट नो, द होस्ट्स नो, अदीबा एंड जवाद, अगर हम सवाल ले सकते हैं तो कैन आई, या नहीं खत्म? जी मोहम्मद, if anybody Yes, got any yes. question then ask. अच्छा ठीक है। Muhammad Qasim is asking about Fulbright. अच्छा, If you मैम Fulbright के बारे में बता दे। मुझे टाइम बताएं, टाइम कितना है हमारे पास? 15 मिनट है ना? जी 15 minutes। 15 मिनट्स हैं। अच्छा, पहला सवाल क्या है? चैट में डाल रहे जी बच्चे, कहाँ सवाल मुझे नजर नहीं आ रहा। चैट में एक क्वेश्चन है मोमल, एंड इट्स अबाउट Fulbright के Fulbright के बारे में बता दे, जस्ट दिस अच्छा, क्वेश्चन। फुलब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो मेरे ख्याल से इस साल वाली भी आई हुई है, और फुलब्राइट स्कॉलरशिप का हाई लेवल आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपने फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप बाय यूएस जाके जो हो, विच इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे, आप यूएस जो है जाके यूएस की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हो। आपको 60-70 हज़ार रुपए अपनी तरफ से लगाने पड़ते हैं, जिसमें से 30,000 का आप जीआरई देते हो, जो कि टेस्ट होता है यूएस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का।
और इसके अलावा आप तकरीबन 30-35 हज़ार टोफल का एग्जाम देने पे लगाते हो, ठीक है। इन दोनों एग्जाम के स्कोर्स चाहिए होते हैं आपको। इसके अलावा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में आपको 2 एसेज लिखने होते हैं और वो सब कुछ होता है, मतलब वो डिटरमिन करता है कि आपको मिलेगी कि नहीं। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एक होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपने प्रूव करना होता है कि आप बड़े पैट्रियोटिक हो अपने मुल्क के हवाले से, आप वाकई अपने मुल्क में कोई चेंज लाना चाहते हो और आप वहां जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, वहां जाके क्या करना है आपने, ठीक है। उधर जाके किस तरह की रिसर्च करनी है, उधर जाके आपने किस तरह का काम करना है और वहां जाने का अल्टीमेट गोल क्या है आपका, और फिर वहां से क्या सीख के आओगे और यहाँ वापस आके आप क्या बेहतरी ला सकते हो। तो वो 2 ऐसे सब कुछ होते हैं। और एक बार जब आपके ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर आप को एक ईमेल आ जाती है और फाइनल इंटरव्यू होता है और आप सिलेक्ट हो जाते हो। साल लगता है आपका यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट में एंड एवरीथिंग। अगर आप 2020 में अप्लाई कर रहे हो तो आप 21 में यूएस जाओगे और मेरी बदकिस्मती के तब कोरोना हो गया था। लेकिन अगर अब आप 23 में अप्लाई कर रहे हो तो आप 24 में जाओगे। तो इसके अलावा एक और जरूरी बात, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है आपको J2 वीजा पे यूएस भेजती है, जो कि एक्सचेंज विजिटर वीजा होता है, जिसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपका स्टडी पीरियड खत्म होते ही आपको मुल्क वापस आके 2 साल गुजारने होते हैं। आप सब्जेक्ट टू 2 ईयर होम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट होते हो। तो जब मैं यूएस में थी तो मुझे गूगल ने, एप्पल ने, अमेजोन ने, सब ने रीच आउट किया था और मुझ में कोई कमाल नहीं है, डेमोग्राफिक लोकेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप बाहर के मुल्क जाते हो तो ये सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स आपसे लाइक 2-3 घंटे की फ्लाइट कैलिफोर्निया में होते हैं, तो ये सारे आपको रीच आउट करते हैं, गूगल वाले क्लियर होते हैं कि हमारे पास काम कर लो। सो आप नहीं कर सकते बिकॉज J2 वीजा की वर्क लिमिट्स होती हैं 20 आवर्स पर वीक और समथिंग। और जिन लोगों के पास वहाँ पे रेजिडेंशियल वीजा नहीं होता, कंपनीज थोड़ा सा रिपेल करती हैं कि इनके साथ हमें वीजा स्पॉन्सरशिप देखनी पड़ेगी एंड ऑल। तो ये 2 ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस यही है कि आप बाहर से मास्टर्स करके 1-2 साल वापस अपनी फैमिली के पास आना चाहते हो, लाइक इट वाज इन माय प्रेफरेंस, आई हैड सम पर्सनल प्लान्स फॉर व्हिच आई हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान टू मीट माय फैमिली, टू गेट मैरिड एंड स्टफ। तो अगर आपके भी यही प्लान्स हैं तो आप मास्टर्स करने जा सकते हो, वापस आके शादी कर लो, अम्मी अब्बू को थोड़ा सा टाइम दे दो एंड स्टफ लाइक दैट, फिर आप दोबारा जो है यूएस वापस जा सकते हो। सो दैट इज द डील विद द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा वैसे। क्या जीपीए वाकई मैटर करता है कि नहीं? अच्छा, दैट डिपेंड्स कि आपका जो है ना नहीं, जीपीए वेल ऑनेस्टली कहूँ तो जीपीए मैटर्स, जीपीए डज नॉट मैटर अ लॉट। अगर आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जीपीए छोटा सा फैक्टर होता है आपकी प्रोफाइल पे, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल पे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आपने कम्युनिटी वर्क किया हुआ है, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा है, आपका जीआरई स्कोर अच्छा है, आपका टोफल स्कोर अच्छा है और आपकी जीपीए बस है, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो जीपीए मैटर्स और डजंट मैटर, इस सवाल को हम इस तरह देखने की बजाय कि हाँ भाई बस मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी है, आप इस चीज पे फोकस करो कि अगर आप जीपीए पे फोकस नहीं कर रहे हो तो फिर किसी और चीज पे जरूर करो। सो माय फियांसे हु इज वर्किंग इन गूगल, हुज़ैफा हबीब, उसकी जीपीए बहुत कम है, बताने वाली भी नहीं है, बट ही इज वर्किंग इन गूगल, आई मीन सीरियसली। सो आप लोग जो भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जीपीए मैटर्स और नॉट, तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि अगर आप जीपीए पे काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप किस चीज पे काम कर रहे हो? आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, आप स्टार्टअप बना रहे हो, आप कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कोर्सेज और थ्योरी में काम नहीं कर रहे हो, उसमें टाइम नहीं लगा रहे हो, फाइन, टोटली फाइन, मत करो, लेकिन कुछ और जरूर करो। जीपीए डजंट मैटर, कभी भी मेहनत से फरार का रास्ता नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने कामयाब होना तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जीपीए अर्न करने में नहीं करनी, मत करो, कहीं और करो, लेकिन करो जरूर। या व्हाट नेक्स्ट? मैम जो आपने कंप्यूटर विजन में मास्टर्स किया हुआ है, तो एज अ मैं तो बैचलर का स्टूडेंट हूँ 6 सेमेस्टर का, तो मेरा भी वैसे मैं भी चाहता हूँ कि कंप्यूटर विजन में करूँ, अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाऊँ जो बैचलर में। तो मैम आपको ये बताइए ना, जो हमें चैलेंजेस फेस हो सकते हैं, आपने कंप्यूटर विजन में किया हुआ है ना फाइनल ईयर ये क्या नाम है मास्टर्स, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए थे, तो वो आप हमें ज़रा बता देना तो मैं इसको फिर इजीली टैकल कर सकूँ। तो इट डिपेंड्स। मेरा तो मास्टर्स का जो रिसर्च प्रोजेक्ट था वो कंप्यूटर विजन पे था और मैं एक बंदी थी अपनी टीम में, क्योंकि मैं लीड कर रही थी, जो मेरे साथ दूसरा बंदा था वो जूनियर था और एक मेरे चाइनीज प्रोफेसर थे। तो चैलेंजेस आपको ये फेस हो सकते हैं कि जब आप एमएल में रिसर्च कर रहे होते हो या कोई नई चीज बना रहे होते हो या आप कुछ भी कर रहे होते हो एमएल में रिसर्च टाइप काम कर रहे होते हो, तो वो चीज राइट अवे कभी भी काम नहीं करती।
कभी भी नहीं। तो आपको बार बार जाके, मतलब अब मेरी जॉब में भी मुझे जो है, मैं मतलब ML ऑप्स, मैं ML इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी आधी जॉब ML रिसर्चर की होती है, क्योंकि मैं मॉडल्स ट्रेन कर रही होती हूँ, मैं ग्राफ्स देख रही होती हूँ, मेरा मॉडल क्यों नहीं चल रहा, मैं वापस जाके डिबग कर रही हूँ, मॉडल क्यों नहीं चल रहा, मैं वापस जाके डिबग कर रही हूँ। तो मेरी मेरी यही लर्निंग है कि चैलेंजेस यही आते हैं कि आप बहुत एफर्ट डालते हो, thousands ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखते हो, लिटरली thousands, और बहुत से मॉडल्स ट्रेन करते हो, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स रन करते हो। तो एआई या मशीन लर्निंग ये नहीं होती कि डेटा लिया, प्रोसेस किया, मॉडल ट्रेन किया, एक्यूरेसी अच्छी आ गई, बात खत्म। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स ट्रेन करने पड़ते हैं, आपको हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करने पड़ते हैं, आपको पाइपलाइन, ट्रेनिंग पाइपलाइन में बग्स ढूंढने पड़ते हैं, प्री प्रोसेसिंग कोड में कभी कोई बग निकल आता है, फिर उसके बाद मॉडल ट्रेन हो जाता है, फिर आप जाके देखते हो मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। बहुत पेशेंस के साथ आपको सारा प्रोसेस जो है वो डील करना होता है। तो लर्निंग्स, या अगर आप ML रिसर्च करना चाह रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि एक तो आप बहुत पेशेंट रहोगे, दूसरा आप अपने काम को बार बार थॉरली चेक करोगे, कोई भी नया फीचर डाला है, कोई भी नई चीज डाली है, कोई भी नया पार्ट डाला है प्री प्रोसेसिंग में, नॉर्मलाइजेशन के लिए ये वाले नहीं, ये वाले वेट्स यूज करते हैं, बाउंडिंग बॉक्स इस तरह डिस्प्ले करेंगे, कोई छोटे से छोटा भी चेंज कर रहे हो तो उसको टेस्ट जरूर करना है। और तीसरा, ऑलवेज आस्क योर एडवाइजर या ऑलवेज आस्क योर सीनियर फॉर हेल्प, ऑलवेज 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 ऑलवेज, दे ऑलवेज नो बेटर। तो फंस जाओ तो 1-2 घंटे या 1-2 दिन से ज्यादा किसी चीज पे नहीं फंसना, बिकॉज यूर लर्निंग। रिसर्च के सही जवाब किसी को नहीं पता होते, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मॉडल लर्न नहीं हो रहा, ये मॉडल ठीक काम नहीं कर रहा तो इसमें आपका कसूर है। नहीं, अगर मॉडल लर्न नहीं कर रहा, ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो नोबडी कैन टेल यू कि इसको करो। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। वो बंदा खुद भी नहीं कर सकता, आपका रिसर्च एडवाइजर या सीनियर भी नहीं कर सकता। तो कोलैबोरेट करो, जाके पूछो कि ये नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और कॉन्स्टेंटली कीप रनिंग, कीप गोइंग एक्सपेरिमेंट्स, like keep giving it a go, and eventually it works out. This is the only way to make research work. I hope that answers. Ali. Thank you, ma'am. Who's next? मैम अगर हम फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब हमारा 8 सेमेस्टर है ना, तो अभी से अप्लाई शुरू कर दे या ये सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद? अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट भी रेडी नहीं है और यूनिवर्सिटी की वजह से भी टाइम नहीं मिलता, तो अभी से अप्लाई करना चाहिए या बाद में? और स्कॉलरशिप के लिए रिसर्च का वो कोई पेपर पब्लिश होना ज़रूरी है कि नहीं, उसके बगैर भी? नहीं, मुझे जब मिली थी फुलब्राइट स्कॉलरशिप तो मेरा कोई भी पेपर पब्लिश नहीं था, और फुलब्राइट सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप होती है, यूएस की यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन देती हैं, तो पेपर पब्लिश होना शर्त है ये, और अच्छी जीपीए होना शर्त है। ये सब बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मिली हुई है और मेरा कोई पेपर पब्लिश नहीं था। अगर आपका 8 सेमेस्टर है, आपको ज्यादा लोड नहीं होगा, आप दिन में 1 घंटा तो निकाल सकते हो मोहम्मद कासिम, राइट? आप दिन में 1 घंटा निकालो, स्कॉलरशिप की लिस्ट बनाना शुरू करो। अच्छा, कौन कौन से, मेरे बहुत से दोस्त हैं यार। मेरा एक दोस्त यूके में है, एक जर्मनी में है, आपकी खैर हो, मैं खुद यूएस गई थी, यूएस में भी अभी मेरे बहुत से दोस्त हैं। लाइक देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स। तो आप रिसर्च शुरू करो कि कौन सी स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, कौन सी स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, किस मुल्क में अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। ये 1 घंटे की रिसर्च तो आप कर सकते हो ना रोज, ठीक है? तो आपका 8 सेमेस्टर जब तक खत्म होगा, आपको तब तक अंदाजा भी हो जाएगा, अच्छा इस वाली स्कॉलरशिप पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पे नहीं करना चाहता, इस पे किस किस ने अप्लाई किया, इस पे किस किस ने नहीं किया। द पॉइंट इज कि अगर आप अप्लाई करने के लिए सीरियस हो तो आप पैसिवली अभी से उस पर काम शुरू कर दो, क्योंकि स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना और वो उस पूरे प्रोसेस में मुझे पूरा 1 साल लगा था, और फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी मुझे पूरा साल पाकिस्तान में रहना पड़ा था। तो देर ना करें, अगर आपने करना है तो अप्लाई करें, निकलें, बिकॉज द अर्लियर द बेटर स्कॉलरशिप के केस में। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपने जीआरई दिया था? हाँ जी, जीआरई के बगैर आप यूएस यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सकते, मैंने जीआरई दिया था। मैम बिगनर्स के लिए कोई एआई कोर्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें? बिगनर्स के लिए एआई कोर्सेरा इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन है एंड्रयू एनजी की, वो करें। मैम इसमें बहुत सारे मतलब एनएलपी है और कंप्यूटर विजन है, इस तरह बहुत सारे और भी है। हमें सबको देखना चाहिए ना, नहीं किसी एक पे फोकस करना चाहिए? मशीन लर्निंग से शुरू करें, आप सिंपल मशीन लर्निंग से शुरू करें और फिर एनएलपी या कंप्यूटर विजन में से किसी भी एक की तरफ निकल जाएं, लेकिन पहले सिर्फ मशीन लर्निंग से शुरू करें, आपको पता चले।
मशीन लर्निंग नहीं आएगी तो एनएलपी या कंप्यूटर विजन भी नहीं आएगी। मैम हम Excuse एज me, अ ma'am. बिगिनर क्या हम चूज कर सकते हैं एआई में आगे वर्क करने के लिए? एज अ बिगिनर आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें? That is what I just walked you guys through. अगर आपने AI की बेसिक्स सीख ली हैं, कोर्सेज सीख लिए हैं, आपको थ्योरी थोड़ी बता गई है, तो आप प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करें। अच्छे प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें ताकि आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए स्कॉलरशिप मिल जाए, स्टार्टअप बनाना है आइडिया शुरू हो जाए, अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपकी प्रोफाइल पे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन वर्क ऑन। मैम ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं ये सारी J2 वीजा पे काम करती हैं। ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं ये सब ये J2 वीजा भी होती है, मतलब हमें वापस आना पड़ेगा 2 साल बाद, जैसे आपने बताया ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिली थी गूगल से। यूएस का है, बाकियों का मुझे नहीं पता। यस मैम, यूएस का है। ओके ओके। Excuse me, ma'am. I had a very lengthy question, but since we have a very limited time, so I will wrap it up very quickly. तो मुझे एक मसला आ रहा है। आई एम करंटली स्टडीइंग इन 4th सेमेस्टर डेटा साइंस, राइट? और हमारा एक कोर कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मसला ये नहीं है कि टीचर्स कुछ ऐसे पढ़ा रहे हैं। टीचर्स आर वेरी प्रोफेशनल, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद लाइक द कोर्स ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि थ्योरी और जैसे मतलब थ्योरी की क्लास में थ्योरी पढ़ने से और लैब में एड्रीनो पे काम करने से आई थिंक दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग माई गोल ना। तो I have only 2 days like the weekends, Saturday, Sunday, on which I visit home. तो क्या आप मुझे कुछ ऐसे आइडियाज बता सकती हैं अपने थॉट प्रोसेस से कि जैसे मतलब मैं किस तरह स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता हूँ यूजिंग AI? Like there are different ideas, right? Like promoting small scale businesses through AI. तो सुने आपका नाम क्या है? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं? मैम 8 to 9. That's less. You can work for like 10 or 12 hours because I do. तो अगर Okay, आप कह that रहे हैं कि makes आपके पास वीकडेज में टाइम नहीं होता तो you can actually try to hit and are those 8 hours complete focused productive hours जिसमें आप काम के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे? तो मतलब ये 8 घंटे आप दिन में ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे आप सेटिस्फाइड भी नहीं है, जो फुलफिलिंग भी नहीं है? आप AI सीखना शुरू like करें। satisfied in a sense like I want to work on real time projects ना। तो just मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि if you could like work on small scale projects तो what will be your thought process? आप कहाँ से start करेंगी? I'll start from Kaggle. वहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं। Kaggle के बाद वाह, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। Kaggle के बाद अगर मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना हुआ तो मैं किसी के साथ कोलैबोरेट करूंगी, किसी सीनियर के साथ या किसी टीचर के साथ, ताकि मैं कोई सिंपल मशीन लर्निंग का प्रोडक्ट बनाऊं, राइट? कोई उसकी ऐप बनाऊं या कोई वेबसाइट बनाऊं और उसको डिप्लॉय करूं एंड टू एंड। वो चीज़ डिप्लॉय जरूर होनी चाहिए, उसकी कोई यूजर स्टेटिस्टिक्स होनी चाहिए कि इतने डाउनलोड्स हुए हैं उस मशीन लर्निंग वाली ऐप के या समथिंग लाइक दैट। यूटी पिशावर के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिसिंग के नाम से ऐप बनाई थी। वो मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट था और उन्होंने उसको डिप्लॉय किया था, फिर उसका उन्होंने स्टार्टअप बनाया था जो फेस रिकग्निशन का सिंपल सा एल्गोरिथम था पीछे, लेकिन उन बच्चों ने ये काम किया था। तो आपके लिए आप कैगल से शुरू करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स होते कैसे हैं। ठीक है वहाँ वीकेंड्स पे आपको टाइम मिलता है, ठीक है, तो आप वीकेंड्स पे घर जाके वो करो। और एक बार आपका हाई लेवल आइडिया क्लियर हो जाए तो फिर किस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि आपके पास 3-4 अच्छे आइडियाज होंगे और फिर आप उनमें से चूज करोगे कि मुझे किस पे करना है या किस पे नहीं करना। तो ये जो बिल्कुल आप ब्लैंक हो ना, ये ब्लैंकनेस आपकी कैगल पे काम करने से, फिर यूडासिटी की नैनो डिग्री पे काम करने से, या फिर वो कोर्सेरा वाला प्रोजेक्ट कोर्स उठाने से दूर हो जाएगी। क्योंकि आपकी बात ठीक है, यूनिवर्सिटीज में जो AI सिखाई जाती है वो काफी नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ गर्ल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ML आना ज़रूरी है AI के लिए, और हम AI और साइबर सिक्योरिटी को दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं या नहीं? That depends कि what you are more motivated about। एक टाइम पे दोनों को ना लेके चलें तो बेहतर है, क्योंकि दोनों अलग डोमेन्स हैं, दोनों की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों बिल्कुल सेपरेट फील्ड्स हैं। तो आप जब सब कुछ कर रहे होते हो तब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। तो टेक वन थिंग
स्टार्ट लर्निंग दैट। उसमें मजा आ रहा है तो करो, मजा नहीं आ रहा तो छोड़ दो और नई चीज स्टार्ट कर लो। और एमएल आना जरूरी है एआई आने के लिए, तो एमएल और एआई आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। इट्स अ सब्जेक्टिव आंसर, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन आप एमएल सीखो, एआई आपको खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो आप मशीन लर्निंग सीखना शुरू करो। जो जिनको भी एआई का कुछ आइडिया नहीं है, दे जस्ट स्टार्ट विद लर्निंग मशीन लर्निंग। वो मशीन लर्निंग सीखना शुरू करें। एनएलपी, कंप्यूटर विजन, एआई, ये सारी बातें उनको खुद ब खुद समझ आने लगेंगी। फिर मशीन लर्निंग सीखना शुरू करें। Okay. Thank you so much. एंड किसी का अगर बहुत जरूरी सवाल है तो आई कैन टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी कैन कॉल इट अ डे एवरीवन। जो जिस बंदे ने अभी तक कुछ भी ना। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन जो है वो जॉब हंटिंग की रिलेटेड है। तो सपोजिटली हम अप्लाई कर रहे हैं किसी एमएल इंजीनियरिंग के रोल के लिए, तो जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे उनका जो टेक्निकल टूल बॉक्स वो जो उनके टेक्निकल स्किल्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होंगे, केरास, टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च वगैरह। वो कौन सी स्किल होंगी, टेक्निकल हो या सॉफ्ट स्किल, जो हेल्प करेंगी मतलब उस क्राउड से स्टैंड आउट करने में? वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली लव दैट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है मैम। अब्दुल्ला अहमद। अच्छा अब्दुल्ला, गिटहब पे जाएं। आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, राइट? एमएल ऑप्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। जब आप मशीन लर्निंग के प्रोडक्ट्स को लैब से निकाल के, मॉडल्स को लैब से निकाल के प्रोडक्शन में ला रहे होते हैं। मुझे भी इस चीज़ का बड़ा शौक था। तो PyTorch, Keras, TensorFlow, Python, data science are मतलब ये बच्चों वाली चीजें सबको आती हैं। The thing that can help you stand out, first thing, जिन जॉब रोल्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके देखें कि वो टूल्स कौन से मांग रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की जितने ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आपकी रेज्यूमे के साथ ओवरलैप होंगी, आप उतना ज्यादा क्राउड में ऊपर आ जाते हो, पहली बात। दूसरी चीज, आप जो एमएल ऑप्स में अगर इंटरेस्टेड हो, आपके पास बेसिक मशीन लर्निंग और एआई का आइडिया है, ठीक है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आपकी प्रोफाइल पे 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, केरस, टेंसरफ्लो, पाइथन, आपको बेसिक डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन, एनएलपी थोड़ी बहुत खैर आती है, तो आप एमएल ऑप्स स्टार्ट कर सकते हो। और एमएल ऑप्स सीखने के लिए बेहतरीन रिसोर्स जिससे मैंने सीखी थी विद इन 2 वीक्स, like not within 2 weeks but getting to know, जो आपका क्वेश्चन है ना कि वो टूल्स और वो सब चीजें that are out there लेकिन हमें पता नहीं है कि how to use them। like अब एक बंदा मॉडल ट्रेन कर रहा है तो वो सिंपल भी ट्रेन कर रहा होगा, अपनी मर्जी का बैच साइज, अपनी मर्जी का नंबर ऑफ इपॉक्स, लर्निंग रेट, अपनी मर्जी के हाइपर पैरामीटर सेट करके। और अब एक और बंदा है जिसको पता है कि एक टूल है जिसको कहते हैं ऑप्ट्यूना, जो कि आपको ये बेहतरीन टूल्स आपके मॉडल और डेटा सेट के हिसाब से खुद ढूंढ के दे सकता है, तो वो बंदा डेफिनेटली ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत से टूल्स हैं जो एमएल ऑप्स और मशीन लर्निंग रिसर्चर्स का जिनको पता नहीं होता। और एप्पल में एक इंडियन काम करता है, गोकू मोहन दास। आप गिटहब पे जाओ, गिटहब पे जाके लिखो गोकू मोहन दास एमएल ऑप्स कोर्स। वो टेक्स्ट कोर्स है सारा, सिर्फ टेक्स्ट है उसमें, और वो आर्टिकल्स उसने लिखे हुए हैं, कोई 10, 15, 20, 50 आर्टिकल्स होंगे, ज्यादा नहीं। मुझे 2 हफ्ते लगे थे वो पढ़ने में सारे। और वो बेहतरीन कोर्स है। देयर इज सो मच टू लर्न कि आपको अपना कोड लिखना कैसे चाहिए, कोड स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, फाइल्स कैसे बनाते हैं, कोड टेस्ट कैसे करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के कौन कौन से टूल्स हैं, डिप्लॉय करने के कौन से टूल्स हैं। जब आप एक चीज बनाना शुरू करते हो तो आप सोचते, वो एप्पल में काम करता है, उसने अपना सारी जो पाइपलाइन जो वो लोग फॉलो करते हैं उसने वो सारा थॉट प्रोसेस शेयर किया हुआ था। तो बहुत अच्छा कोर्स था। तो एमएल ऑप्स बाय गोकू मोहन दास। एक ये दूसरी पहली चीज जो थी वो आपकी रेज्यूमे, और दूसरी चीज जो है ये वाला कोर्स, ये आप जाके उठाओ और ये फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड दैट्स इट। ठीक है बच्चों, ऑल गुड? अभी भी हैंड्स रेज किए हुए सबने? यस मैम। ठीक है, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हालांकि रात के 9 बज रहे हैं लेकिन आप लोग आए, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी है, बहुत अच्छा लगा है। मुझे पूरा घंटा सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प। अगर किसी का कोई मसला हो तो मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट करें, मुझे मैसेजेस करें। मैं मैसेजेस का डायरेक्ट जवाब नहीं देती, मैं बहुत सुस्त हूँ, लेकिन मुझे हेल्प करके मज़ा आता है, क्योंकि मतलब हम अपने हिस्से की ख्वारी कर चुके हैं एक सर्टेन पॉइंट तक, आगे भी हम लर्न कर रहे हैं, हम अभी भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम जो ट्रैक गुजार के आ चुके हैं, आप लोग उस पर लॉस्ट ना हो जाओ।
तो आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प, ताकि किसी भी तरीके से किसी को भी पुश मिले, किसी को भी डायरेक्शन मिले, किसी को कोई गोल मिले, कोई कुछ अचीव कर ले और अपने अपने करियर को स्टीयर कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। आप लोग मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट करो। बहुत शुक्रिया टू लिसन टू मी, टू टेक इंटरेस्ट इन व्हाट आई हैड टू से, और आप सबसे मिलके सबसे गपशप लगा के बहुत अच्छा लगा है। एट द एंड ऑफ द डे दिन अच्छा हो गया मेरा। आई होप आप सबका भी अच्छा हो गया होगा। एंड विद दैट I take off, I guess. Adiba, I guess you can take over. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Momal, for lecturing and giving a session. It was a fruitful session. We enjoyed it a lot. Thank you again. And now I will invite the MLSA community lead, Jawad Amin, for concluding the session. Thank you, Adiba. So thank you, Momal, for sharing your expertise and insights with us. We have learned a lot, I'm sure, and we are grateful for it. Your guidance and valuable advice will undoubtedly help us embark on our journey, AI journey, with more confidence. And I must say that your welcoming nature has empowered me to connect back to you, and surely I will in regards to seeking guidance, mentorship, and for having you again in our sessions as our guest speaker. To the participants, I hope this final episode of the Bootcamp Artificial Intelligence Unfolded has been a fruitful experience for you all. And remember that the journey does not end here. It's just a beginning. Keep exploring, keep learning, and remember, keep implementing what you have learned. And we would like to extend our heartfelt gratitude to Zahin.IT for their support throughout this bootcamp, and MLSA IM Sciences, our team, for making it possible. Once again, thank you to all the participants for your active participation, willingness to learn, and for being a part of this exciting journey. We wish you all the best for your endeavors, and it's a successful wrap up, I guess, and we'll soon interact again with another learning and upskilling opportunity for you all. Have a very good night, and Allah Hafiz. We can call it a day now, and you might leave the meeting. Thank you so much. Thank you. What is AI?